بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان تمام خواتین و حضرات اور صحافی دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اپنے ہی ایک بھائی کو اس منصب پر فائز ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ان بھائیوں اور بہنوں کا زیادہ شکریہ جنہوں نے ویلکم نہیں کیا یا کوئی منفی بات کی۔ تو میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور آگے چلتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی دعاؤں اور مدد کی ضرورت ہوگی کہ جس منصب کا میں نے اور ہماری کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس حلف کی پاسداری کریں، اور آئین اور قانون کے تحت ہمارے اور جتنے بھی فرائض ہیں، لیکن نگران حکومت کے حوالے سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہمارے ملک کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس ملک کے عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک منتخب جمہوری حکومت ہوگی، اور وہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں ہی ممکن ہے۔ تو اس بنیادی کام کو آئین اور قانون کی نظر میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم پوری کریں۔ آج وزیر اعظم کی قیادت میں ہماری کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ اس کابینہ کے اجلاس کے بعد میری پہلی میٹنگ الیکشن کمیشن کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان کے ساتھ تھی، اور کابینہ کے اندر الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اس میں اعانت جو بنیادی ہمارے کام میں شامل ہے، اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی خواہشات اور کابینہ کی خواہشات ہیں وہ میں نے ان کے گوش گزار کی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اختصار سے جو اہم فیصلے ہیں کابینہ کے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جو لکھا ہوا جو پڑھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اور بالخصوص کابینہ کے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی سلسلے میں میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہم کسی بھی فرد
فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ جڑاں والا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تصحیح نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔ جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی، جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء و صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم ان کے حکم کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جو کل جڑا والے کا واقعہ ہوا تو ایسے جی سر میرا نام نازر سمران ہے، ABN نیوز سے میرا تعلق ہے۔ کس نیوز سے جی؟ اچھا ABN سے۔ جی 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 سر یہ جو آپ نے معاشی بحالی کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ جیسے ساری دنیا پاکستان کو ترجیح ہے جو آپ نے ساری پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ شدید ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے گئے کچھ اس کی آئینی ضروریات کے تحت، تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ آگے چلے گئے یا آپ کی کوشش ہوگی کہ 90 روز کے اندر اندر یہ چھوٹے چھوٹے روز؟ دیکھیں، جو معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، غربت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جن لوگوں کی ملک کی معیشت پر نظر ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو کہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2015-16 کے بعد پروگریسولی ہمارے حالات خراب ہوئے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات
को इसका इल्म है कि हम लोग एक IMF का मुंजमद प्रोग्राम था, वो बड़ी मुश्किल से वो उसको धक्का दे के स्टार्ट कराया और हम लोग एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसमें हैं और उसमें हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। उनमें ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ ना दें। जो मुल्क की मईशत का हाल है, जो हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए का जो हाल है, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हमारा जैसा मुल्क महंगा तेल ख़रीदे और सस्ता बेचे। तो ये हम चाहें ना चाहें, हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन इस हुकूमत को ये करना पड़ा। इसलिए ये बात दुरुस्त है जब लोग पेट्रोल बाम की बात करते हैं और जी वो वगैरह जो इस्तिलाहात, रंगीन इस्तिलाहात आप लोग मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, मुझे उसका एहसास है, लेकिन ये एक मजबूरी है। मुश्किल ये होगी और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादती होगी कि मुल्क इस हाल में हो और आपकी काबीना और आपके वज़रा अल्ले तल्ले करें। अगर लोग मुश्किल में हैं तो आपकी जो क़यादत है उसको कम से कम अलामती तौर पर ये तो करना चाहिए कि आपके जो टैक्स हैं, टैक्स पेयर्स, आपके जो टैक्स रुपीज़ हैं, उसको बेदर्दी के साथ खर्च ना करें। इसीलिए मैंने जो अभी नोट्स पढ़े हमारी काबीना के तो उसमें इस बात पर जोर दिया है कि जी हम अपने अखराजात बढ़ाएं ना। जब आमदनी नहीं बढ़ रही तो अखराजात बढ़ाने का कोई हमें हक़ नहीं है, अखलाकी हक़ नहीं है। मैंने कल परसों भी ये कहा कि हमारा जैसा मुल्क जो हमारे ज़राए महदूद हैं, फिर हम अपने ख़र्चे बढ़ाते जा रहे हैं, फिर हम तो कहीं IMF या कहीं कर्ज़े शर्ज़े जाकर ले लेते हैं। गरीब आदमी किसके पास जाएगा, वो किससे कर्ज़ा लेगा? उसके पास तो कोई IMF वर्ल्ड बैंक नहीं है। जो बंदा 800 रुपये में 20 किलो का आटा ले रहा था, अगर उसको 2500 और 3000 रुपये में आटा ख़रीद ले तो वो कहाँ से लेगा? कौन सा बैंक देगा उसको? तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का। अब मैं आपका जो आखिरी सवाल था उस पर आ जाऊं। देखें, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और जो मुल्क का आइन है उस और कानून है उसकी नज़र में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और उन्होंने इलेक्शन कराने के हवाले से पूरा एक शेड्यूल और एक मंतक पेश किया है कि क्यों कब तक वो हल्का बंदियाँ करेंगे। पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, वो मेरे पास भी है। मैं आपको बोर नहीं करूँगा वो डिटेल्स तारीख देकर, लेकिन ये उनका काम है और ये आपके इल्म में भी है कि ये मामला एक हद तक सब जुडिस भी है, क्योंकि एक जमात या कुछ हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गए हुए हैं। ये जो सेंसस CCI ने जो किया है, तो ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आइन और कानून जो कहेगा और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मेरे पास तो पतली गली का रास्ता है, इधर से आके मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। साहब, आपने पहले कहा कि जो प्रॉपर हुकूमत है पीछे की, उसके बहुत से लोग बहुत से लोग कहती हैं। दूसरी बात है
साइबर क्राइम्स के खिलाफ जो ट्रैफिक के हवाले से है या करप्शन के इल्जाम हैं उनमें वो उसमें कैद भी है। कुछ मुकदमा जो है 9 मई के बाद बने हैं, कुछ जेकेस बनी हुई है, तफ्तीश हो रही है, इसी दौरान पर महफिल भी होंगी। इन दोनों तरह के मुकदमात हैं, दोनों तरह की कार्रवाइयाँ हैं, उस पर केयर टेकर हुकूमत जो है उसकी क्या पॉलिसी होगी, हाल किया जाएगा, उसको चलते रहने दिया जाएगा, इस पर क्या पॉलिसी होगी? हमारी इस पर कोई पॉलिसी नहीं है। ये मामला अदालतों में है, कानूनी तफ्तीशी रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। हम इसमें किसी फरीक का रोल अदा नहीं करेंगे, न इनको इनके जो केसेस हैं इनको तगड़ा और तेज़ करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करेंगे, न इसमें स्लो डाउन करेंगे। हम इस काम से बाहर हैं। सुनील साहब, खुशी की बात है कि हम में से एक शख्सियत उधर बैठी है। सिखर में एक साथी का कत्ल हो गया आपके सामने। आप एक जर्नलिस्ट होते हुए क्या उसके ऊपर अपडेट करेंगे, और जिन लोगों की गफलत की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी डेथ हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसके ऊपर देखें। दूसरा जड़ावाला का जो वाक़या हुआ है उसकी भी कोई कैबिनेट के हवाले से कोई बात हुई, और इस तरह के वाक़यात रोकने के हवाले से, और क्या वो जो जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं क्या वो भी विजिट की जाएंगी? क्योंकि पहले तो जो एक हाउस जला था सारी दुनिया को दिखाया गया था इबरत के निशान के लिए, ताकि उन लोगों को भी इबरत के लिए वो जगह भी दिखाई जाए कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैंने जो नोट्स पढ़े काबीना की इजलास के, उसमें उसका ज़िक्र था, और जो वज़ीर आज़म साहब और जो काबीना के जो जज्बात हैं वो मैंने आपको बयान किए। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम पाकिस्तानियों का, उनका अकीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं, और तमाम अकायद का एहतराम करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। उस पर तमाम लोगों ने, तमाम कायदीन ने, तमाम अमायदीन ने दुख और अफसोस का इजहार किया है, और मुझे यकीन है कि आपका दिल भी उसी तरह से दुखी है जिस तरह से मेरा दुखी है, और जिस तरह से जो मुतासरीन हैं उनका दिल दुखी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त और नफ़रत की ये जो भट्टियाँ चल रही हैं, ये आज से नहीं है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको तारीख़ पे लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ कानून और रियासत और सूबाई और सिक्योरिटी के इदारों को अपना किरदार अदा करना है, उसमें आपका किरदार, तालीमी इदारों का किरदार ज़्यादा अहम है। हमें चाहिए कि मुल्क के अंदर जो एक इंसानियत है, जो कि हमारे मज़हब का भी बुनियादी असूल है, हम उसके मानने वाले हैं जो रहमतुल आलमीन है, जो सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, तमाम जो मानने वाले हैं, जो ना मानने वाले हैं किसी भी मज़हब के, उन सब का खुदा है। उन सब का एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। तो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, और बिला तख़सीस मेरे ख़्याल में पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई एक सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे जो आपने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हरकत में आई, आर्मी चीफ ने भी इस पर एक बयान दिया। ये हम सब लोगों का काम है, ये हमारा मुल्क है। तो हमारा काम है कि जो ये नफ़रत के जो लावे उबल रहे हैं उनको ख़त्म करें, और मीडिया के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, अपने ड्रामों में, अपने म्यूज़िक में, अपनी शायरी में वो माहौल पैदा करें जो रोके लोगों को। हर काम सिर्फ डंडे से ठीक नहीं होगा। आपके दिल के अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि जो मेरे साथ जो भाई बैठा है
اس کا رنگ کیا ہے, ان کی عمر کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں, تب یہ ملک مضبوط ہوگا. اچھا, میں ویسے ایک تجویز دوں گا مستقبل کے لیے. یہ جو ہمارے ہاں جب بھی ہم پریس ٹاک کرتے ہیں اور 50 لوگ ڈٹ کرتے ہیں نا, اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز میں زیادہ گھن گرج ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. بہت سارے میری جیسے نحیف آواز والے پیچھے رہ جاتے ہیں, خواتین پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آئندہ ہم یہ کریں گے کہ جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا, ہم کس سے کہیں بھائی جس نے سوال کرنا وہ اپنا نام لکھ دے اس میں, اور ایک ترتیب بنا دیں گے, اور ہم اس ترتیب کے ساتھ کہیں گے جی اب فلاں اب فلاں اب فلاں, تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ہر ایک کو موقع ملے. جی فرمائیے. جی ادا. جی ادا. جی جی مجھے بہت افسوس ہے اور میرے پاس تمام حقائق نہیں ہیں, لیکن آپ جیسے آپ کا دل دکھی ہے میرا بھی یہی اسی طرح سے دکھی ہے. جو بھی متعلقہ حکام ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے, اور آپ کے وزیر اطلاعات ہونے کے حوالے سے یہ میری زیادہ ذمہ داری ہے. آپ جو بھی حکم کریں گے, جو تجاویز دیں گے, جو بھی قابل عمل ہوں گے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سلطی صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کا نظام حکومت کا مینڈیٹ دیا گیا, مینڈیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دوسرا آپ نے حکومت میں روزمرہ کے جو امور ہیں وہ نمٹانا ہے. آپ نے جو باتیں کی ہیں کچھ اس مینڈیٹ سے مجھے زیادہ لگتا ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کے بات کی, تو نگران حکومت جو 90 دن کے لیے ہے وہ 10 وزیروں سے بھی چلتی تھی. کل ہی پہلے دن 24 وزراء گئے, بعض جو ڈویژن ہے کے 3 وزیروں نے بھی کل آئے, اور پرائم منسٹر سے کل ہماری جو بات ہوئی ادھر تو وہ کہہ رہے تھے مزید روک دیا ہے. تو ایکسپینڈیچر آپ کیسے کٹ کریں گے, کوئی طریقہ کار بتایا ہے؟ اور مینڈیٹ آپ کا جو ہے روزمرہ کے امور, اس میں آپ کو کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں معاشی بحالی کی, اور باقی چیزیں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم نے قوم کو کس طریقے سے ان کا جو بڑھانا ہے, ذہن کو ٹرین کرنا ہے. تو یہ مینڈیٹ میں آتے ہیں نگران سیٹ اپ کے کہ وہ اس قسم کی, کیونکہ مینڈیٹ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا ہے اور روزمرہ کے اپورٹ نہیں کرنا. الیکشنس 90 دن میں ہوں گے یا 95 دنوں میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے, میری اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے, نہ اس حکومت کی کوئی رائے ہے, نہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے, وہ جتنے دنوں میں کرائیں گے. ہماری ذمہ داری ان کی مدد کرنا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے, ان کے خیال میں یہ 90 دن بنتا ہے, کچھ کا خیال کچھ ہے. ڈیلیمیٹیشن کا ایک الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ریشنل ہے. ہم اس میدان میں نہیں ہیں. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کہیں گے کہ جی ہم کل کرا رہے ہیں تو ہم الیکشن کرا کے اقتدار جو منتخب نمائندے ان کو دے کر چلے جائیں گے. لیکن یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور جب تک ہم ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے. بنیادی ذمہ داری ایک لا اینڈ آرڈر کی ہے, تمام نگران حکومتوں کی, صرف وفاقی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم دیوالیاپن میں جاتے جاتے بچے ہیں, بڑی مشکل میں ہیں ڈیفالٹ سے بچنے میں. تو ہم یہ ہرگز اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کریں گے کہ ملک معاشی طور پر مزید ریسٹیبلائز ہو. میری معلومات کے مطابق 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے. کچھ ایک ہاتھ میں میری جتنی انگلیاں ہیں ان سے کم مشیر اور معاونین ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا موازنہ پچھلی 2 حکومتوں کی سائز سے کریں تو میرے خیال میں آپ خود انصاف کریں گے کہ اس کے مقابلے پر بہت کم ہے.
दूसरी चीज़ मैं ख़ासे वसूख से कह सकता हूँ कि ज़्यादातर अरकान का ताल्लुक़ उनके अपने शोबे से है। अब अगर आप मुझे बताएं कि मुझे अगर आप सर्जन जनरल बना लें तो फिर इस कौम के साथ क्या होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपने मुतल्लिका शोबे से हैं। सुनील साहब, कुर्बान बलोच हूँ मैं आवाज़ टीवी से। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो भी तजावीज़ आएंगी निगरान हुकूमत उस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। दूसरा हुक्म आइन का है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करानी है। अगर निगरान हुकूमत ये नहीं करती तो ये आइन से इनहराफी नहीं होगी। हमारे पास तहरीरी आइन भी मौजूद है और खुशकिस्मती से वो इदारे भी मौजूद हैं जो उस आइन पर अमल दरामद कराते हैं। अगर कल ये फैसला होगा कि फ़लाँ दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं और फ़लाँ तारीख़ को होंगे और ऐसा हुक्म इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा तो इलेक्शन कमीशन जो हमें कहेगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। खालिद महमूद एक्सप्रेस से। लोनी साहब, आज मजमूई तौर पर कैबिनेट में क्या हुआ कि पाकिस्तान को कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है जिसको इस कैबिनेट ने हल करना है। दूसरा, आप असेसमेंट करेंगे कि क्या इस कैबिनेट में ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि जो उनकी हालात हैं उनको ठीक कर पाएंगे। मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। मेरे ख़्याल में मैंने आज अपने दाएं बाएं और अपने आमने सामने लोगों को देखा जो इस काबीना के अंदर हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे काबिल प्रोफेशनल लोग लगे, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब मैं यहाँ पर बुलंद बांग दावे करूँ लेकिन मेरा अमल उससे मुख्तलिफ हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप मुझे जज करेंगे, हमारी काबीना को जज करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म को जज करेंगे उनके आमाल से, उनके काम से। हमारा काम बोलेगा। मैं कितनी भी अपनी ख़ुद तारीफ़ी करूं, लेकिन अगर इफ़ माई वर्ड्स डोंट मीट माई एक्शंस इट विल बी मीनिंगलेस। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बुनियादी चैलेंजेस हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाना, जो पिछली जो हुकूमत जो बुनियादी फ़ैसले कर गई है उससे पहलू तही करने का हमें अख्तियार नहीं है। हम इकनॉमिक या पॉलिटिकल डायरेक्शन को तब्दील करने का हमारे पास अख्तियार नहीं है, तो हम उसी पर उसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। खातून पीछे ये माइक खातून को दे दें क्योंकि अभी तक ख़वातीन आई नहीं हैं। मेरे ख्याल में आप थोड़ी सा दिल बड़ा करें, उसके बाद आपके पास आ जाए। जी जी। थैंक यू सर, मेरे आपसे दो सवाल। पहला सवाल ये है कि क्योंकि माजी में आप बहुत बदतरीन सेंसरशिप का शिकार रहे हैं और कुछ दिन पहले चंद सहाफ़ियों के नाम टीवी पर चल रहे थे कि इनको इजाज़त नहीं है कि ये किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में आए पाकिस्तान में। तो क्या आपके दौर में सेंसरशिप वाले सहाफ़ी का हालात में इसमें कोई बेहतरी आएगी, चाहे वो 6 माह तक ही है या उससे भी आगे चला जाता है? दूसरा सवाल मेरा है कि जब निगरान वज़ीर आज़म आ गए थे तो उनकी पार्लियामान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक तकरीर गर्दिश कर रही थी जिसमें उनकी सोच की अक्कासी नजर आई थी। तो आप ये बताइए कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं क्योंकि वो भी बलोचिस्तान से हैं, तो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो रियासत की पॉलिसी है क्या उसमें कोई आपके होते हुए तब्दीली आएगी या फिर वो वही रहेगी जिसकी जो हमें वज़ीर आज़म जो है हमारे निगरान उनकी सोच में नजर आ रही है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमने ये देखा कि आपको हमने हमेशा आइन कानून और जमहूरियत की बात करते और वही सबक हमें पढ़ाते हुए देखा है और सुना है, तो इन दो चीज़ों के हवाले से थैंक यू। मैं ज़ाती तौर पर भी और हमारी काबीना सेंसरशिप पे उसका कोई ईमान नहीं है। मेरे इल्म में है कि पेमरा ने एक डायरेक्टिव जारी किया था, कुछ लोगों के उसमें नाम हैं। ज़्यादातर ये वो अफराद हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है। पेमरा बराह रास्त मेरे ज़ेर निगरानी नहीं आता,
और शायद मैं उनको कोई अहकामात जारी नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी ही हुकूमत का एक इदारा है, तो मैं ज़रा इस पर कुछ मालूमात लूँगा कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। लेकिन पैमरा के पहले भी बहुत सारे अहकामात आए हैं और कई अहकामात जो हैं वो अदालतों में चैलेंज हुए हैं और अदालतों ने उन अहकामात को, जिन अहकामात को अदालतों ने गैर कानूनी समझा है, उनको ख़त्म कराया है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जो मुल्क का जो कानून है उसको सब फॉलो करेंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने वज़ीर या वज़ीर आज़म बनने से पहले कुछ कहा था, तो उस वक्त उनकी हैसियत और थी। जब आप हल्फ उठा लेते हैं मुल्क के आइन और कानून का, तो फिर आप उसके पासदार हैं। अगर आप मुझे बताएंगे कि वज़ीर बनने से पहले किसी ख़ास जमात या उसके ख़ास रहनुमाओं के बारे में मेरे रंगीन ख़यालात क्या थे, तो शायद मेरे लिए उनका दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ और एक ज़िम्मेदार ओहदे पर अब फायज़ हूँ। मैंने हल्फ उठाया है, इसलिए मुझसे किसी गैर ज़िम्मेदार बयान या कदम की तवक्को न रखी जाए। जी फरमाइए। मिनिस्टर साहब, पहले तो कांग्रेचुलेशन यू आर सिटिंग हियर एज अ मिनिस्टर। नंबर 1, ये अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम पेट्रोल सस्ता लेकर या महंगा लेकर सस्ता नहीं बेच सकते, तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा बताने के साथ फरमाएंगे कि हम किस कीमत पे पेट्रोल ले रहे हैं और किस कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। और नंबर 2, मिसिंग पर्सन के हवाले से उनकी बहन हमारी ने एक सवाल किया है, तो कितने मिसिंग पर्सन अभी तक हैं जो जिनकी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, मिसिंग पर्सनस की जो फिगर्स हैं उसके बारे में, और दूसरा सवाल था आपका कीमतों के हवाले से। मुझे ये मालूम है, जो मैंने आपको बताया, कि जो कीमतों का जो फ़र्क आया है पिछले 15 दिन का, उसके तहत ये कीमतें तब्दील की गई हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये भी है कि जो पिछले 15 दिनों में हमारे रुपए की बेकदरी हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है, उसका भी एक इम्पैक्ट है इस फैसले पर। जो एग्जैक्ट जो एदाद शुमार हैं वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये दोनों जो है वो ट्वीट कर दूंगा, या प्रेस रिलीज के तहत जो है वो आपको ये मालूमात हम दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि जैसा कि आपने भी कहा और आइन में भी वाज़ेह है कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसका बेसिक जो काम है वो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, जिसके लिए मीडिया का भी एक आज़ादाना जो किरदार होना जो है वो नाज़ीर है। गुज़िश्ता दोनों अदवार में हमने देखा कि जो बात होती रही है कि हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो वो मीडिया के लिए बड़ी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो उसकी भी वही पॉलिसीज़ होती हैं कि मीडिया पर पाबंदियाँ भी होती हैं और बहुत सारे दीगर इक़दाम भी। एक तो ये बताएं कि निगरान हुकूमत की मीडिया के हवाले से पॉलिसी क्या होगी, बिल्कुल सभी जो कौमी असम्बली ने और उसके बाद वो बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर दिया। पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर हुआ, जिस पर अमल दरामद के हवाले से भी चैलेंजेस होंगे मौजूदा हुकूमत को। एक तो इस हवाले से अपनी जो पोजीशन है वो बता दें कि क्या होगी। दूसरा, साबिक़ हुकूमत की जानिब से एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई थी और एक एपेक्स कमेटी जिसका आर्मी चीफ भी हिस्सा है, तो ये बताएं कि आज एक नई इक़्तिसादी बहाली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। क्या वो एपेक्स कमेटी बदस्तूर काम करती रहेगी या कि उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब ये नई कमेटी जो है काम करेगी? देखें, जो पिछली हुकूमत के जो अहम मुआशी फ़ैसले हैं उनका तसलसल जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने तौर पर कोई नई पॉलिसी, कोई नया डायरेक्शन दे नहीं सकते। जो जिस कमेटी का जिक्र किया गया,
ये हमारी कैबिनेट की अपनी कमेटीज़ हैं जो असल जो पहले से इदारे मौजूद हैं उनकी मदद करना है। हमने कोई नए इदारे कायम नहीं करने, जो हैं उनके तहत ही हम चलेंगे। हमने पहिया ईजाद नहीं करना। सर ये बता दें कि जिस मुद्रास लगी को हम जानते हैं वो डेमोक्रेट है, आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार और एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि जो वज़ीर-ए-आज़म के बारे में हमने जो जाना है वो कैडेट कॉलेज से लेकर नेशनल पीपल्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रेजुएट है, उनका तर्जुमान बनने का ओहदा कबूल करना मुश्किल फैसला था आपके लिए? सर एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा। सवाल ले लें। इंतजामिया जो है पेट्रोल पिछली दफ़ा 272 जब हुआ इससे पहले भी हुआ था, रेट बढ़ा दिए गए। आम बंदे को जब पेट्रोल वापस कम किया गया 9 रुपये तो कोई सस्ता नहीं किया गया। अभी दोबारा 272 जब हुआ तो महंगाई जो मार्केट के अंदर अज खुद महंगाई की जा रही है उसको मौजूदा हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी, उस माफिया को कैसे निकल डालेगी? मेरे सवाल का जवाब सर पहले देखें, मैं किसी ज़माने में प्राइमरी स्कूल में भी था, तो उस ज़माने में मेरी क्या हरकतें थीं उसका जवाब मैं आज नहीं दे सकता। आज मैंने आइन और कानून का हल्फ लिया है और मेरी कुछ ख़ास जिम्मेदारियां हैं जो मैंने पहले बयान कर दी। इसलिए मैं ज़िम्मेदार हूँ उस वक्त से उस वक्त तक जब मैंने हल्फ उठाया है और जब तक मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके चला नहीं जाता। जब मैं आपकी कुर्सी पे बैठा हूँगा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, फिर मैं भी आप ही की तरह से सवाल करूँगा। हाँ।